Ritu, introduce yourself. So as you know, my name is Ritu. I live in Gurugram. So I have completed my schooling from Gurugram only. And after that, I have done my graduation in chemistry honors from Sri Venkateshwara College, University of Delhi. And so my hobbies include dancing and painting. All right. Why do you want to join civil services? सर स्कूल में ही ये थॉट था बट व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो इस थॉट को एक डायरेक्शन मिला. माय सीनियर्स वर प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड जब उनमें से किसी एक का हो गया था तो सर ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस. दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि आई कैन मेक अ डिफरेंस इन माय लाइफ एज वेल एज इन अदर लाइफ एंड सर I will also get a chance to be part of the developmental machinery directly and working for the people at the ground level. So sir, these were the reasons behind. Have you given any attempts for UPSC? Yes, sir. I have given 3 attempts for UPSC. 3 attempts for UPSC. Okay. So if I understood you correctly, your main motive for joining civil services is development, social service. Is that the only motivating factor, or there are others as well? So financial sustainability is also an important factor. But yes, sir, developmental part of the government is the important factor behind my choice. Status, power, privileges, anything? So that would come with the job, but the most important thing that working for the people at the ground level. If I would ask you to rank all these different motivations in order, as per your preference, how would you rank them? So first, interest. I have an inclination towards civil services. And so second, I think I am a very compassionate person. Like for example, in my life also, I try to be compassionate and I have this ability to listen people very carefully. So, and working for the people. So basically the choice is to work for the people. कभी कभार लॉ एंड ऑर्डर के लिए कंपैशन को साइड पे रखना होता है. कई बार स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कंपैशन को आपको साइड पे रखना होता है और ड्यूटी अपनी निभानी होती है. डोंट यू थिंक योर कंपैशन वुड कम इन योर वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग लॉ एंड ऑर्डर? सर आई डोंट थिंक सो कि कंपैशन मेरे ड्यूटीज के बीच में आएगा. सर आई थिंक कंपैशन होना जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अबाउट पब्लिक डीलिंग. सो यू हैव टू डील विद पब्लिक, यू हैव टू मेंटेन योर काम एंड यू हैव टू बी कंपैशनेट. But sir, when it comes to maintaining law and order, sir, I think वहाँ पर like training maybe I'll be guided by the faculties and sir ये चीज़ with training and situation के हिसाब से I think मैं इसको handle कर पाऊँगी. Let's talk about your optional. Your optional is anthropology. Yes, sir. What's the difference between anthropology and sociology? Sir, both the disciplines are good. But anthropology is basically the holistic study of humans across space and time. And so sociology mainly deals with the society, the rural and the urban communities, whereas anthropology deals with the tribal communities, primitive communities. And so in sociology, in anthropology, we follow the fieldwork approach. But in sociology, the fieldwork approach is not there. The questionnaire or the secondary sources are there. So basically these two are the major differences between sociology and anthropology. Do you agree with this assessment that sociology is a subset of anthropology? Anthropology covers a wider spectrum of issues and subjects. Sociology is just a subset of anthropology. Do you agree with this assessment? Sir, I think both are separate disciplines, but anthropology is a holistic study. Anthropology does contain the social factors and it deals with the sociology. But I wouldn't say that it is a subset of anthropology. Both are, yes, sir, I wouldn't say that. Why did you choose, since your graduation was in chemistry, why did you choose anthropology? Was it because you find this subject interesting? Or was it because it's easy, the syllabus is limited, there's a very high scoring potential in anthropology? Was that your main reason or was interest your main reason? Sir, these are also the reasons behind choosing anthropology. And chemistry is a great discipline, but I have studied it in my graduation, so I just wanted to switch to another subject. And so anthropology is indeed interesting subject as the society, as I have already mentioned, it talks about the holistic nature of the society of humans across space and time. So basically, I found anthropology to be very interesting. And after reading anthropology like for 2 years now, and like society को लेकर I have become more of aware person.
Since you find anthropology interesting, have you read any books related to anthropology apart from your UPSC curriculum? No, sir. You haven't. Yes, sir. Since you find anthropology interesting, But I didn't get time to read other okay, books. no problem. But you find it interesting. Yes, sir. Do you know anything about Dennis Owens? Dennis Owens. So I've just read his name. Like he is in the anthropology, but He is. sorry, sir. What? The- Dennis evo- Owens. Who are evo- Dennis Owens? So ancestors, Ancestors of humans. humans. What's the name of our species? Human species. What's the scientific name for that? So hominids, We call them Homo sapiens as well. Homo sapiens as well, right? So, Who are Neanderthals? so Neanderthals. We also read about Neanderthals. So I would say sorry because my human evolution is not prepared right now. So I'll study about it more. I'm sorry, sir. All right, no problem. आप गुरुग्राम से हैं। Yes, sir. आपकी सारी अपब्रिंगिंग आई थिंक शहर से भी हुई है Yes, sir. पीछे आपसे गांव से भी कनेक्टेड हैं किसी से? So my parents are connected from like rural areas, but मेरी upbringing पूरी सर गुरुग्राम रीजन से हुई है. गुरुग्राम से। Yes, sir. क्या आप जो हरियाणा प्रदेश है उसके जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को आप अंडरस्टैंड ऑलरेडी करते हैं, कुछ जिन पे आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं आने वाले टाइम में अगर आपको मौका मिले? सर रूरल डिस्ट्रेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसमें सर एग्रीकल्चर सेक्टर. सर वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है. एंड सर मेन रीजन है इनपुट और आउटपुट का मिसमैच. क्योंकि सर जो मोनोक्रॉपिंग हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि राइस एंड व्हीट पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल कम हो गया है. तो उस वजह से सर जो यूथ है उसको एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव नहीं लगता एंड उनके पास स्किल्स भी ज़्यादा नहीं है, तो सर वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं. एंड जब वो बाहर माइग्रेट करते हैं तो उनको उनके अकॉर्डिंग जॉब्स नहीं मिलती. तो सर फिर रूरल अर्बन में माइग्रेशन की वजह से कुछ क्लैश देखने को मिलता है. तो सर बेसिकली जो रूरल यूथ है वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आता है एंड रूरल डिस्ट्रेस में एग्रीकल्चर सेक्टर सर वहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम सर जो हमारा मतलब टुवर्ड्स विमेन है स्टेटस रूरल एरिया में वो भी सर थोड़ा डिग्रेडेड है एज कम्पेयर टू अर्बन. अर्बन में भी उतना अच्छा नहीं है बट रूरल में थोड़े ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं. सर जैसे एजुकेशन को लेकर विमेन की अगर वो स्कूल में पढ़ा भी देते हैं तो उनको एक जॉब करने के लिए नहीं भेजते. बट अर्बन सेक्टर में स्टिल विमेन आर वर्किंग और रूरल एरिया में सर विमेन ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर तक ही कन्फाइंड है और वो दूसरी चीज़ें करते हैं. बट अर्बन एरियाज में स्टिल विमेन आर कमिंग इनटू द सर्विसेज सेक्टर. इनमें क्या किया जाए? सर हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. यस सर. ओके. उसमें हमको हमने Yes, sir. काम भी करने दिया जाता है उसके लिए क्या करें? क्षेत्रीय लेवल पर या काउंटी लेवल पर? सर जो ऑलरेडी स्कीम्स प्रेजेंट है उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए. एंड सर अवेयरनेस मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्योंकि जागरूकता अगर उन्हें होगी तो उन्हें पता होगा उनके राइट्स क्या हैं. तो अभी सर विमेन इन डेवलपमेंट है कि हम विमेन के लिए कुछ कर रहे हैं, पर जब उनको अपने राइट्स पता होगा तो सर वो विमेन लेड डेवलपमेंट होगा. तो राइट्स का अवेयरनेस होना मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है. एंड एट द सेम टाइम सर उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट बन जाए. क्योंकि विमेन का ज़रूरी है कि वो एसेट बने. अभी वो लाइबिलिटी समझे जाते हैं. तो एसेट बनाने के लिए सर उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बेहद ज़रूरी है. उसके लिए स्किल्स हमें देना चाहिए. एजुकेशन तो ठीक है बट स्किल्स देना ज़्यादा ज़रूरी है. हरियाणा में वैसे तो हम जानते हैं कि हरियाणा प्लेन इलाका है, पर हरियाणा में से कई पहाड़ियां भी गुजरती हैं. कौन सी पहाड़ियां हैं? सर अरावलीज है, उसमें मोरनी हिल, पंचकुला में मोरनी हिल्स है सर. और भी सर जैसे सर मैं भी नाम याद नहीं कर पा रही बट अरावलीज एंड मोरनीज का थोड़ा. यस सर. हरियाणा में कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है? सर 6. और कितनी सब डिवीजन? सर सब डिविजन्स 22. सब डिवीजन. So, just a second. The districts are 22 and subdivisions are around, so sorry, not able to recall. आप गुरुग्राम से यहाँ आए,
तो बाय रोड आएंगे? यस सर। तो कौन से हाईवे से आए? सर नेशनल हाईवे 44। गुरुग्राम से पंचकुला तक के सफर में कौन से शहर बीच में इसी क्रम में? सर पानीपत। सबसे पहले पानीपत। सर उससे पहले भी है पानीपत, फिर अंबाला, और सर फिर रोहतक भी आता है पहले। अगर हम रोहतक वाया रोहतक आ रहे हैं तो रोहतक हो गया सर, पानीपत हो गया, फिर अंबाला हो गया, एंड देन सर फिर पंचकुला। रास्ते में करनाल सर करनाल, सॉरी सर, नहीं सर कुरुक्षेत्र नहीं आया। पीपली नहीं सर। आपने ज्योग्राफी हरियाणा की देखी है? वैसे सारी ज्योग्राफी कितना अवलोकन है आपका हरियाणा के? हरियाणा कितने क्षेत्रों में है ज्योग्राफी प्रोग्राम? सर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब किस? जैसे हरियाणा को हम 2 हिस्सों में प्राइमरी मानते हैं। यस सर। कौन से हैं वो 2 हिस्से? सर नॉर्दर्न हरियाणा, सदर्न हरियाणा। यस, हाँ हाँ हाँ। उत्तरी हरियाणा और दक्षिण हरियाणा। दक्षिण हरियाणा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सर नून, पलवल एंड भिवानी। सर ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय लेवल पर आपको लगता है, अगर आपने ज्योग्राफी देखी कि हाँ यहाँ पर किसी तरह से कोई समस्या जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी लाइक वीक है, कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई रीजन आपको आइडिया है इसका? सर सदर्न रीजन में सर वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल ऑलरेडी कम है सर, और रेनफॉल भी वहाँ पर कम ही होती है। एंड दूसरा सर रिवर्स नहीं है सदर्न रीजन में, तो और एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सर पानी ही होता है। तो सर ये रीजन मुझे लगता है फॉर द लेस डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स वाइज देखा जाए तो ज्यादा डेवलप नॉर्थ हरियाणा या साउथ हरियाणा? सर डिफरेंट पैरामीटर्स पर अगर हम देखें, नॉर्थ हरियाणा आई वुड से सर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया सर, कनेक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा है, हेल्थ के लिए भी सर ज़्यादा अवेयरनेस है नॉर्दर्न हरियाणा में सर। डेवलपमेंटल सर नॉर्दर्न हरियाणा, सदर्न हरियाणा। सर अगर हम ईस्ट हरियाणा की बात करें, जहाँ पे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है सर, एक तो NCR प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, तो कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है सर, और डेंस नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवे देखने को मिलता है। तो सर ये प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट को। एट द सेम टाइम सर एजुकेशन एंड हेल्थ भी अगर हम देखें, और गुरुग्राम में तो सर हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो सर ये रीजन हो सकते हैं। सपोज आप जिस सब डिवीजन के DSP लगते हैं, वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपकी ज्यूरिसडिक्शन में ड्रग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे यूथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है और बहुत सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है ना। आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे टू सॉल्व द मेनेस ऑफ ड्रग्स इन योर सब डिविजन? सर जहाँ से ड्रग्स आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगली, वहाँ पे स्ट्रिक्ट विजिलेंस होना चाहिए, जो भी इन्फोर्समेंट प्रोसीजर्स है उन्हें फॉलो करे। तो सर ये DSP की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि विजिलेंस को इंश्योर करे। एंड एट द सेम टाइम अगर वो अपने सोशल लेवल पर कुछ कर सकते हैं तो अवेयरनेस कैंपेन्स को हम चला सकते हैं, और यूथ का जो रिहेबिलिटेशन है, जो ड्रग्स ऑलरेडी जो एडिक्टेड है, तो रिहेबिलिटेशन करना जरूरी है। एंड सर उसके साथ साथ जो भी यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट हो गया सर, उनकी जो एनर्जी है हमें उसको चैनलाइज करना चाहिए, तो थ्रू जिम हो गया सर, योगा क्लासेस हो गए, योगा सेंटर्स हो गए। तो ये बताओ DSP करेंगे आप? मेनली सर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, एंड जो भी स्ट्रिक्ट विजिलेंस और एनफोर्समेंट प्रोसीजर्स है उन्हें। ठीक है, आप एंट्री एग्जिट पॉइंट थोड़े से नाकाबंदी कर देंगे, विजिलेंस, यस सर। और आपकी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट क्या, आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आप क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं एज अ DSP? चीजें आपने अभी थोड़ी देर पहले बताई, वो तो एक NGO भी करती है। बताओ DSP, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, बताओ DSP, और मैं DSP वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक तो आपने बता दिया कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के लिए आप विजिलेंस रखेंगे, उसके अलावा आप क्या करेंगे? सर DSP अवेयरनेस कैंपेन्स भी कर सकते हैं, और सर उसमें अवेयरनेस कैंपेन्स में जैसे थ्रू सर वेरियस लाइक पेंटिंग्स के थ्रू हम कर सकते हैं, वॉल पेंटिंग्स हो गए।
डीएसपी का मेजर कार्य या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है नहीं। लॉ को इम्प्लीमेंट करना। यस सर, करेक्ट सर। क्या ड्रग रिलेटेड, ड्रग यूज रिलेटेड कोई लॉ एग्जिस्ट करता है जिसको डीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? करेक्ट सर। सर नारकोटिक्स एक्ट है, तो एनडीपीएस एनडीपीएस, यस सर। तो यस सर, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो प्राइम यस सर, वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यस सर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यस सर। ठीक है। हरियाणा में हरियाणा का कुछ खेलों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में कुछ कंट्रीब्यूशन है, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर हरियाणा का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में। सर रीजंस मुझे बताना है क्यों ज्यादा है। सर मल्टीपल रीजंस है सर। पहला तो सर हमारा जो कल्चर है कि दूध दही का खाना, अपना देश हरियाणा, सर हमारा जो फूड हैबिट है और जो फिजिकल स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर की वजह से। सर दूसरा जो स्टेट पॉलिसीज है कि सर बजट में हम स्पोर्ट्स के लिए काफी ज्यादा सर एलोकेशन करते हैं। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करना और जो हमारे कोचेज होते हैं उनके लिए भी सर कुछ ना कुछ फैसिलिटीज सरकार देती है। और सर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स को लेकर काफी अच्छा है और अभी रिसेंटली सर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी आ रही है। हमारे कुछ मेन हरियाणा के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ परफॉर्म किया, वो आपको कुछ नाम बता सकते हैं? सर रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुए थे टोक्यो में, तो नीरज चोपड़ा है सर, जिन्होंने जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता था सर। और उसके अलावा सर गीता फोगट सर, जो एक रेसलर है, और साक्षी मलिक, वो भी एक रेसलर है सर। तो सर यही नाम अभी मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। ठीक है। आपने ये बताया आपकी हॉबीज जो है वो डांस है। यस सर। हरियाणा के कुछ फोक डांस में है जिसको हम बोलते हैं क्या सर? लोक नृत्य। लोक नृत्य सर। सर सर घूमर है। उसके अलावा सर धमाल, डफ डांस है सर। और सर जो वेरियस ओकेजन्स होते हैं उस पर भी, जैसे तीज डांस परफॉर्म हो गया, होली डांस हो गया सर, और झूमर भी है सर। तो ये जो डांस है, इनके जो आपने नाम बताया, ये क्या ये पूरे हरियाणा में है या कोई एरिया स्पेसिफिक होते हैं कुछ ऐसे भी है कि इस एरिया आप गुरुग्राम से, वहाँ पे कौन सा डांस ज्यादा चलता है? अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई करते हैं वो एरिया किसी डांस से? सर गुरुग्राम में तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब इतना फेमस कोई डांस है। सिटी गुरुग्राम, बट इफ यू टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट, ओके। सो इज इट एसोसिएटेड विद एनी सॉर्ट ऑफ डांस, लोक नृत्य? सर तीज डांस हो गया, और सर जो ये हमारे ओकेजन्स होते हैं, सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। सॉरी सर, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। बना कब था? सर 1 नवंबर 1966 फॉर्मेशन डे। हरियाणा बनाने की डिमांड कहाँ से आई? सर हमारे जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज थे, जैसे लाला लाजपत राय और पंडित नेकी राम शर्मा, सर उन्होंने हरियाणा को सेपरेट करने की बात कही थी। किस बेस पे? सर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग जो था वो एक सेपरेट स्टेट में चाहते थे, और जो पंजाबी स्पीकिंग है वो अलग सेपरेट स्टेट होना चाहिए। सो बेसिकली सर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ज्यादा डिमांड थी। डिमांड किसकी थी? हिंदी स्पीकिंग की थी कि पंजाबी स्पीकिंग की थी? सर ये हमारी तरफ से थी, हरियाणा की तरफ से। और तो आप डांस, आप कौन सा, आप पेंटिंग्स, किस तरह की कोई स्पेसिफिक पेंटिंग में इंटरेस्ट है आपका, या कोई ओवरऑल पेंटिंग, ड्राइंग एंड ऑल, स्केचिंग? सर एक्राइलिक पेंटिंग एंड वाटर कलर। ओके। और डांस? सर डांस में सेमी क्लासिकल और सर भांगड़ा भी। अच्छा, तो आपको you are a trained dancer, you have taken some sort of a training, और वैसे ही बस हॉबी? सर थ्रू लाइक YouTube के थ्रू सीखा है, बट नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेन डांसर। ठीक है, आप दीजिए, थोड़ी देर में आपको 2 मिनट के लिए दोबारा कॉल करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। So Ritu, tell me, how do you think your interview went? सर आई थिंक इम्प्रूवमेंट बहुत करना है, स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी पर। इवोल्यूशन। यस सर। आपका इंटरव्यू है कब? सर 2 फरवरी। 2 फरवरी, थोड़ा टाइम है, ज्यादा नहीं है पर थोड़ा टाइम तो है आपके पास। चलो हम आपको बताते हैं क्या किस किस एरिया में कर सकते हैं। पहले मैं 2-4 चीजें बताऊंगा, फिर सर आपको थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या चीजों में आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर वगैरह परफेक्ट है। यू लुक कॉन्फिडेंट, यू अपीयर कॉन्फिडेंट, योर स्पीच इज कॉन्फिडेंट, योर वॉल्यूम इज ऑल्सो ऑप्टिमल। सो वो बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो इशू विद दैट। योर ड्रेसअप इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन।
एज फार एज यही आप पहन के जाएंगे इंटरव्यू वाले दिन भी? सर मैं वाइट विद ग्रे बॉर्डर सोच रही, वाइट साड़ी। सॉर्ट ऑफ लाइक ऐसे आप फॉर्मली लाइक है ना जो Formal sir. होते ये जो हम हैंडलूम स्टाइल जो भी है ना, Yes, ये sir. नाइस है, ये आप इसी अटायर में रहिएगा। अगर ये भी प्रेफर करूँ तो कलर इज योर चॉइस। Okay, sir. आपको कॉन्फिडेंस हो, कई बार किसी को भी लकी कलर होता है, वी डोंट से दैट, बट वी रिकमेंड हैंडलूम। ऐसे आपका जैसे ड्रेस सकते हैं, दिस इज नाइस। Okay, sir. योर पर्सनल प्रोफाइल इज फाइन और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आपसे डांस या पेंटिंग के बारे में कुछ सवाल और पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा, जैसे सर ने आपसे हरियाणा के लोक नृत्य के बारे में पूछा, तो वो थोड़ा सा कर जाइएगा, प्रिपेयर कर जाइएगा, वो आपसे पूछ सकते हैं। सर प्रिपेयर तो था बट अभी याद नहीं आया। नहीं, अभी जो सर बोल रहे थे बिल्कुल यही बात है, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है और कोशिश क्या करनी है कि यहाँ पर जो मुझे पता है वो मेरे दिमाग में है, Yes, सोच sir. के जाना है। पहले आपने इंटरव्यू दिया कि सर ऑनलाइन इंटरव्यूज 2 दिए हैं बस अभी। कहाँ? नहीं, अभी इसी के लिए या वैसे? सर इसी के लिए, HCS के इससे लिए। पहले यूपीएससी में या नो सर, क्योंकि मेंस तक ही पहुंचा है, अभी इंटरव्यू हुआ नहीं। नहीं, ऑल द बेस्ट उसके लिए भी। Thank you, अच्छा sir. होगा। सिंपली आपने ना घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। सर सर लगा कि मैं नहीं, घबरा आप घबराए नहीं। अब लगे यहाँ पे 2 लोग हैं, पता होता है थोड़ा मौका है, वहाँ पे 5 लोग होते हैं, ज्यादा होते हैं, ऐसा लगता है। यस सर। ठीक है, कई बार होता है। यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं बॉडी चला। लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन फील्ड के लोग हैं कोई मैटर नहीं करता। जब आप जाते हो पैनल पे इंटरव्यू देने, यस सर। वहाँ पर अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होते हैं, कोई मीडिया बैकग्राउंड के होते हैं, कोई हिंदी साहित्य से होते हैं। यस सर। जिस भाषा में प्रश्न पूछा गया है उससे मेरे कोशिश कीजिए कि आप उसके आसपास रहें। ये नहीं कि इंग्लिश शब्द भी यूज करने। अगर आपसे हिंदी में प्रश्न पूछा गया तो कोशिश कीजिए कि आप उसका हिंदी में जवाब दें। ओके सर, सर मैं ध्यान बिल्कुल। है ना? हाँ, यस सर। इंग्लिश में पूछा गया है, इंग्लिश में दीजिए, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश में पूछा गया बट यू आर कॉन्फिडेंट आंसरिंग इन हिंदी, दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग। बट हिंदी में पूछा गया एंड यू आर आंसरिंग इन इंग्लिश, दैट इज रियली अ बैड थिंग। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यस सर। है ना? हमारी बच्ची के साथ में ही पंजाब में ऐसा हो गया था। हमारी बच्ची के साथ में शी गॉट अ वेरी गुड रैंक, बट उसके मार्क्स इंटरव्यू में कम इसलिए आ गए क्योंकि उसको बोल दिया कि पंजाबी नहीं आती, वो कहती आती है, फिर इंग्लिश में क्यों बोल रहे? ओके ठीक है सर, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी बिल्कुल हाँ, सर। हाँ, यस सर। तो ये हमारे अपने एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं कि अगर हो सकता है सामने वाले को इंग्लिश उतनी वो कॉन्फिडेंट हो ही ना, राइट? आपका आंसर अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, आप बता रहे हो, लेकिन उसको लगे यार मैंने तो क्वेश्चन पूछा था, मेरे को नहीं आंसर मिला। इन तीनों को मिल गया होगा, मुझे तो आती नहीं इंग्लिश, मुझे तो आती नहीं इंग्लिश, राइट? और इसने हरियाणा में काम करना है, इसको ये हिंदी में लोगों से कैसे कनेक्ट करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन लाइक उठ सकते हैं। यस सर। तो आपने कोशिश ये करनी कि जिस भाषा में प्रश्न पूछा जाए कोशिश कीजिए उसमें जवाब दें। लैंग्वेज में आपकी दिक्कत नहीं है, बॉडी लैंग्वेज में दिक्कत नहीं है। 2 चीजें, एक तो आप हरियाणा का जीके थोड़ा और अच्छे से पढ़ जाइए। यस सर। हरियाणा का जीके थोड़ा अच्छे से पढ़ जाइए, जितना इसमें टाइम में होता है। अच्छा पता है आपको, थोड़ा और बढ़ जाएगा। यस सर, बिल्कुल सर। यस सर। खराब नहीं है, यस अभी भी यू नो बेटर एंड यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, आई कैन टेल यू दैट। बट थोड़ा और अच्छे कर देंगे तो चांसेस बढ़ेंगे। यस सर, और एक बिल्कुल। एंथ्रो जो सर ने बोला, बाकी सब बताएंगे। एंथ्रोपोलॉजी का बहुत डेप्थ में नहीं करना है, 2-4 चीजें हैं बस, वो सर इवोल्यूशन हमेशा से वीक रहा है तो उस पे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये अच्छे से कर जाना। सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंस वगैरह, पर Yes, इतनी sir. डेप्थ में एंथ्रोपोलॉजी में जाएंगे नहीं। हरियाणा तक वो जरूर रख सकते हैं। हरियाणा जी की एक ऐसी चीज है, वो तो आपको प्रिपेयर करना स्टैटिक, चाहिए, बिल्कुल सर। है ना? क्योंकि वहाँ मेजोरिटी आपका इंटरव्यू उसी के आसपास रहेगा। स्पेशली हरियाणा जो फॉर्मेशन है हरियाणा की, उसको तो अच्छे से कर जाइए। सर ने आपसे सवाल पूछा था कि किसकी डिमांड थी, पंजाबी सूबा की डिमांड थी या हरियाणा स्पीकिंग लोगों, हिंदी स्पीकिंग लोगों की डिमांड थी, सही यस। है ना? यस तो सर। वो यस सर। अच्छे से कर जाना। बेसिकली इट वाज अ डिमांड ऑफ पंजाबी स्पीकिंग, राइट? तो यू शुड नो इट, है ना? आप Yes, इसको sir. देख लेना। यस ऐसा सर। नहीं कि वो यही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अगर पता हो, कई बार होता भी है। कई बार लास्ट ईयर तो बड़ा फन पार्ट हुआ था कि राघव सर ने किसी क्वेश्चन पूछे, वो बच्चा इंटरव्यू देने गया, उसको सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। सर बिल्कुल हो सकता है। हाँ, यस हाँ, सर। हाँ, हाँ, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, हरियाणा अच्छे से जरूर कर जाना। हाँ। और एक और चीज, 1-2 आंसर्स में मैंने देखा कि आपसे सर ने सवाल किया, आपको जवाब नहीं आता था क्योंकि आपका जवाब गलत था, पर आपने दे दिया कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप अंदर से अनश्योर हो ना किसी चीज को लेके, तो आप बस परमिशन मांग लीजिए बोर्ड की। आप बोलो सर मुझे अच्छे से नहीं पता है,
पर अगर आप इजाजत दे तो मैं, इफ यू वुड परमिट मी, आई वुड लाइक टू गेस। ओके सर। ऐसे कर लेना, Yes, जैसे sir. आपसे पूछा था ना सर ने कि रास्ते में करनाल कुरुक्षेत्र आता है, आपने कहा नहीं, नहीं आता, है ना? तो रास्ते में करनाल कुरुक्षेत्र आता है, तो आपने कॉन्फिडेंटली बोल दिया नहीं आता। तो आप ऐसा कह सकते थे कि सर मेरे हिसाब से मुझे लगता है शायद नहीं आता, शायद शायद शायद, नहीं आता। correct, आप ऐसे sir. कह सकते थे क्योंकि अंदर से तो आप अनश्योर थे। आउटराइटली यू लाइक क्लीन नहीं डिस्ट्रिक्ट्स आता। ऑफ हरियाणा। एकदम से हमने बोला नहीं सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, नहीं आता। यस सर, ना, तो सर उसमें कह आई मेक दीजिए, श्योर कि ऐसे क्योंकि ही। अंदर से तो आपको लग रहा था, पता नहीं, अंदर से तो यू वर अवेयर ऑफ द कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट। सो उसमें आप कह दीजिए कि सर श्योर नहीं हूँ पर क्या गैस कर सकती हूँ, वो आपको अलाउ कर ही देंगे। लेकिन फिर भी आप ये जो हाईवेज और हाईवेज के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यस सर। या सिटीज हैं, उनको एक बार, चाहे वो जयपुर वाला हो चाहे वो इधर वाला हो। जयपुर वाला तो आपको पता ही है, आपके आगे 3 के बाद में खत्म ही हो जाता है, राइट? Yes, sir. कोटपुतली आया था उसके बाद में अपना। तो इधर वाले को भी आप थोड़ा कर दीजिए, 2-4 ऐसे है ना, रोहतक वाला, ये वो कौन कौन से NH हैं हरियाणा में, कौन कौन सी नदियां हैं हरियाणा की, Yes, उसी के ऊपर थोड़ा काम कर लीजिए आप। सर फंबल जो बीच में थोड़ा बहुत हुआ उससे पर थोड़ा बहुत परमिसिबल, थोड़ा बहुत की प्रॉब्लम नहीं। उनको वो दे आर गिविंग यू, उनको भी तो पता है ना कि यार जो बच्चे आ रहे हैं उनको हमने इतना वाइडर स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, उसमें हर बच्चे को सब कुछ थोड़ी पता है। यस सर। ठीक है, और लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा हमें डिफरेंस पता हो, वो जरूरी है। ठीक है, यस सर। योर कॉन्फिडेंस लेवल इज गुड, यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, थैंक यू सर। दैट व्हाट वी विश एंड वी रिकॉग्नाइज। बाकी तो कई बार कुछ किस्मत के हाथ में होता है, बट यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सर आप जैसे लाइक हो सकता है कि ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाए जिनका नहीं आता हो, तो अगर बोल दूं कि नहीं आता सॉरी सर, तो उससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैम एक बात बताइए, उन्होंने ये जज करना है कि ये पर्सन सर्व कर सकता है कि नहीं, Yes, कितना sir. क्लियर है अपनी थॉट्स के बारे में, कितना क्लियर है अबाउट द लॉ। जैसे सर ने लॉ की बात की आपसे, थोड़ी चीज को बढ़ जाइए कि वुमेन के लिए कौन से लॉज होते हैं, है ना, 498 क्या है, छोटा मोटा ज्यादा नहीं, Yes, sir. कि रेप के लिए क्या है, ड्रग्स के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, इस तरह के जो नॉर्मल लॉज जो डेली लाइफ में होते हैं, छोटे मोटे आपको पता हो, ड्यूटीज क्या रहती हैं, कैसे आप उनकी स्ट्रेंथ में काम कर सकते हो, किस क्या क्या वीकनेस स्टेट की ऑलरेडी है कि उन पे काम। स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं करना है एट एनी लेवल, वो आपने नहीं किया, करना भी नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इंप्रूवमेंट्स और ऑलवेज रिक्वायर्ड। यस सर। इन चीजों पे ध्यान रखना, बाकी आपने अच्छा किया। हाँ, बस ये एक चीज कर जाना, ये डीए जो भी पोस्ट हैं जिनके लिए Yes, FCS sir. हो रहा है, Yes, उनके sir. रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी जरूर करना। सब डीएसपी तो वैसे भी नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर भी चलो SDM, DSP, BDPO Yes, जो sir. भी हैं, इनके रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज कर जाना। यस सर। पूछेंगे वो सवाल, पूछ सकते हैं हो सकते हैं, Correct, कुछ भी sir. पूछ सकते कि आप इस हैं। पेपर रैंडम की पेपर तैयारी होते हैं, लेकिन करो। आज से रैंडम आंसर। Yes, sir. एंड द थिंग इज नोबडी नोज एवरीथिंग, हाँ, राइट? तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता तो कोई गलत हो गया, कोई गलत हो गया। सॉरी। और परमिशन अगर गेस करना है तो। हाँ, परमिशन। यस सर। इट डजंट मैटर कि आप सही जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे, व्हाट मैटर्स इज कि गलत जवाब अगर आपको नहीं आता आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। उन्हें भी पता है सब कुछ, हर समय सबको नहीं पता होता, और Yes, अगर sir. आपसे 2-3 फंबल हो गए और उसके बाद आप एकदम नर्वस हो जाते हैं, वो पकड़ लेंगे कि she does not have a thick skin या she does not have a nerves of steel जिसे हम छोटा कहते सा हैं। एग्जांपल ही बताता हूँ मैं, नवनीत वाला। हमारी बच्ची, शी इज नाउ PCS ऑफिसर, तो वो उसका मैरिटल डिस्प्यूट हो गया मेजर कुछ, ठीक है, उसको बोर्ड ने पूछ लिया, उसका तो UPSC भी सर लोगों ने बड़ी, क्योंकि शी वाज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड वेरी लाइक चैलेंजिंग कंडीशंस से, Yes, sir. इन लोगों ने उन पे बहुत एफर्ट मारा। she cleared her UPSC also, and in interview she asked a question कि आपसे परिवार नहीं संभला, आप डिस्ट्रिक्ट कैसे संभालोगे? She broke down. She started crying. She started It was a crying. very important, very heavy thing Now- for her. यस सर। वो वहां पर उसकी फैमिली हिस्ट्री के लिए थोड़ी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इसकी इनर स्ट्रेंथ कितनी है, Strength कितनी है? राइट? तो Yes, ये sir. बात हम आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं, बीइंग अ वुमन देयर कुड बी सम चैलेंजिंग क्वेश्चंस, राइट? करेक्ट सर। कोई आपसे अब अभी नाउ शी गॉट सिलेक्टेड इन PCS, है ना, एंड शी इज वी आर वेरी हैप्पी अबाउट हर बिकॉज ऑफ हर पोजीशन जहाँ से उठ के आई, ठीक है। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं अगर वो जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, यस सर। ठीक है। यू आर वन ऑफ देम, थैंक यू सर। कीप योरसेल्फ कंपोज, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, और जो सर ने बोला है उन चीज़ों पे आप ध्यान रख के अपने प्रिपरेशन कीजिए, एंड यू Yes, आर sir. गुड इनफ, यस सर, सो आई वर्क अपॉन देम। राइट? एंड सर आई कांटेक्ट भी ठीक था। सब कुछ एवरीथिंग वाज Perfect. कोई बॉडी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फ्री
एग्जाम, प्री इंटरव्यू, पोस्ट इंटरव्यू, कोई भी हेल्प चाहिए हो, कॉल राघव सर, टू कॉन्टैक्ट। ऑफिस में कॉल कर लीजिए, आप सर से बात करा लीजिए, चेतन सर से बात कर लीजिए, किसी से भी कोई भी हेल्प चाहिए हो, वी आर हियर फॉर यू। Thank you, sir. Thank you so much, sir. All the Thank best. you. All the best. Thank you, sir. Thank you so much.